Good evening, friends. In the last lecture of Indian Polity and Constitution, we discussed making of the Indian Constitution, in which we discussed how the Constitution was made, who made it, and how the body which made it was formed. हमने जाना था in deep में कि Constituent Assembly ने 9 दिसंबर 1946 जब ये पहली बार मिली, तब से लेकर 26 ऑफ जनवरी 1950 तक क्या-क्या किया, वो क्या-क्या प्रोसेस थी, जिसकी वजह से हमें 2 इयर्स 11 मंथ्स लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. We have already discussed in the previous lecture कि इतना टाइम क्यों लगा, but we have not yet discussed about the challenges before constituent assembly. उसके साथ ही what are the criticisms of this body, sources of Indian constitution, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए किन किन सोर्सेज की हेल्प ली, and at last we also have to understand what were some of the criticisms of the Indian constitution by legal experts, by the citizens, or by the intellectuals who have good knowledge of constitutions. So in today's lecture, we are going to deal with challenges before Constituent Assembly during the making of the Indian Constitution. So let us write it here. We are going to deal with the challenges faced by the Constituent Assembly in making of the Indian Constitution. Then criticism. Then criticism of Constituent Assembly. At next, sources or how Constituent Assembly made it, means from where they borrowed the content of the constitution, right? So sources भी हम पढ़ेंगे. उसके साथ ही at the end we will also deal with criticism of this document. So now let us start our lecture. All right. दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया था कैबिनेट मिशन प्लान के प्रपोजल्स के थ्रू. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी 9th ऑफ दिसंबर 1946 को, राइट, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया बनाना बाय 26 ऑफ नवंबर 1949. इस दिन ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस लागू हुए थे, बट मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस came into enforcement from 26th of January 1950. Why this date was chosen? Because of the historical reasons related with Lahore session, where we decided that the aim of Indians will be to फाइट फॉर दी पूर्ण स्वराज. तो इस डेट की इंपॉर्टेंस की वजह से 26 ऑफ जैन की जो ये इंपॉर्टेंस थी, इस वजह से हमने इस डेट को चुना फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ प्रोविजन इस डेट से भी आ गए थे, बाकी कुछ इस डेट से भी आए. सो वी कैन सी दैट इट टुक ऑलमोस्ट 2 years 11 months and I think 18 days if we go approximately, बाकी इतना भी ठीक है. तो it took 2 years 11 months to make up the Indian constitution. Why? Because there were some of the serious challenges faced by the constituent assembly, और आज हम उन्हीं challenges की बात करने वाले हैं. So now let us start with the agenda of today's lecture. First thing is challenges faced by the constituent assembly. तो दोस्तों, पहला चैलेंज जो था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, वो था हाउ टू प्रमोट यूनिटी इन अ कंट्री. Let me write it here. How to promote unity in our country. Why? Why is this a challenge? So the answer is कि India is a diverse country. यदि हम इंडिया की बात करें तो we have hundreds of languages, you know, thousands of cultures, and शायद ही ऐसा कोई रिलीजन हो, या फिर होंगे भी तो बहुत कम ऐसे रिलीजन्स होंगे जो इंडिया में नहीं. इंडिया में हिंदुज्म है, इस्लामिक रिलीजन भी है, क्रिश्चियंस भी हैं, पारसीज भी हैं, जैन्स भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं. इसके साथ ही बहुत सारे माइनर एंड मैक्रो रिलीजन्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये फाइंड आउट करना था कि हम इन लोगों में जो कि डाइवर्स कल्चर्स फॉलो करते हैं, जो कि बहुत ही अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज, राइट. यदि आप हर 20 to 20 किलोमीटर्स में, 20 to 25 किलोमीटर्स या 50 to 100 किलोमीटर्स में लैंग्वेज जो है हमारी, उसका बोलने का जो तरीका है एटलीस्ट वो बदल जाता है. और यदि हम बात करें एक मेजर डिस्टेंस की, तो स्टेट बाय स्टेट वी कैन सी दैट there is a serious difference between the language of people. If you go to Kerala, you may not be able to understand it if you belong to Delhi. So there is a difference in language, difference in religion, cultures, faith. तो इस सब डाइवर्सिटी के बीच में यूनिटी को प्रमोट कैसे करें, दिस वाज द फर्स्ट चैलेंज. सो इसका आंसर क्या है? द आंसर टू हाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड टू प्रमोट यूनिटी इन आवर कंट्री, और हाउ what was the mechanism they had to use to promote unity in the country. So the first way of promoting unity in any country is eternal in nature, right? जैसे कि एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. नेशनलिज्म हमने अपने फर्स्ट या और सेकंड लेक्चर में जब हमने बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात की थी, तब हमने समझा था कि नेशन क्या है. सो गाइज,
Nation, as we have discussed earlier also, is nothing but just a feeling of belongingness, a sense of belongingness कि हम सब एक है. जैसे कि यदि हम बात करें जापानीज की, right? तो by race they are all same. Japanese are different from Koreans, right? So they have a sense of belongingness that they all are Japanese. इसीलिए हम देखते हैं कि Japan as a country has a strong sense of nationalism, no matter where they are. Some they might be in USA, they might be in China, they might be in India, but they have a sense of belongingness that they are Japanese. Koreans, similarly, Koreans also have a sense of identity before being called a South Korean or a North Korean or anything. They first of all they have their own identity as Korean or Japanese. This feeling of belongingness, this sense of you know belongingness creates a sense of unity, right? Sense of unity. दूसरा तरीका, अब why this is difficult in India? This is difficult in India because India is diverse. We have people of different caste, different religions, different races, right? तो इंडिया के साथ केस था how to promote unity in diversity. Unity in diversity. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को तो कभी ना कभी आपको इन्वॉल्व लाना ही पड़ेगा, बट जब कंट्री कोई डाइवर्स है तो वहां पर यूनिटी आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं? तो देयर आर सम वेज. इसको हम बोलते हैं स्टेट इम्पोज्ड यूनिटी. स्टेट इम्पोज्ड यूनिटी, इट इज नॉट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विच इज ऑलरेडी देयर. तो इसके कुछ तरीके होते हैं, जैसे रिलीज रिलीजन की जो डाइवर्सिटी है उससे डील करने के लिए हमने पहले तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट डाला. वी क्रिएटेड अ स्टेट विच इज सेक्युलर. सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या है? एक ऐसा स्टेट जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, यानी कि वो किसी भी एक रिलीजन के लिए वर्क नहीं करेगा, या सिर्फ किसी एक रिलीजन के लोगों को सर्व नहीं करेगा, या फिर वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो किसी एक रिलीजन के द्वारा डोमिनेटेड नहीं होगा. सो दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सेक्युलर फॉर अ स्टेट. फॉर अ स्टेट देयर इज नथिंग when it comes to jobs, when it comes to opportunities. State does not discriminate on the grounds of religion. State will not see you are Muslim or Hindu except in case of positive reservation, positive welfare scheme जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. But state will not discriminate on grounds of caste, religion, race, gender. तो हमने इक्वालिटी के कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया so that we could promote unity and diversity. साथ ही हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ही इन फीचर्स की बात की कि यूनिटी, इंटेग्रिटी, इन सभी को इम्पोर्टेंस दी. सो दिस इज हाउ. इसके साथ ही हमने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया. जैसे कि यदि हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो दे पीपल्स इन अमेरिका हैव डुअल सिटीजनशिप. दे आर द सिटीजन्स ऑफ यूएसए एंड ऑल्सो they are the citizen of the state to which belong. But in India, you may be a Maharashtrian, you may be a, you know, Uttarakhandi, Rajasthani, Gujarati, but at the end of the day, you are citizen of India. You belong to India. So this creates a sense of unity. You are unified, right? हो सकता है कि there is diversity by religion wise, by you know language wise, by cultural terms. You may be different from one another, but when it comes to your ultimate identity as a citizen, you are an Indian. So this promotes unity. So these were some of the principles which Constituent Assembly evolved over time, you know, to promote unity and diversity. And also these things also help in promoting the feeling of nationalism. So this was the first challenge before Constituent Assembly. Now let us discuss about the second challenge. Second challenge kya tha? Let me write it here. The second biggest challenge before Constituent Assembly of India was regarding integration of states. Integration of states. इसका मतलब क्या था? So जो ब्रिटिशर्स थे, colonizers थे, they were forced to leave India, right? So they tried everything to destroy India. India, as the independence of India, यदि हम बात करें तो is a part of decolonization process. हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जो थी ना, ऑफ इंडिया was a part of decolonization process. Why Britishers were forced to leave India, which they had been ruling for over 200 years. तो there are two views of scholars at the international level. एक होता है यूरोसेंट्रिक व्यू. यूरोसेंट्रिक व्यू कहता है कि जो वर्ल्ड वॉर्स थे, जो 1930s में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, इसकी वजह से जो भी कॉलोनियल पावर्स थी जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड, इनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन इतना ज़्यादा था, इकोनॉमिक बर्डन इतना ज़्यादा हो चुका था बाय 1950s that it was very difficult for them to run their colonies like India, है ना, like Ghana,
अल्जीरिया। तो मैक्सिमम कॉलोनीज वर इन एशिया और अफ्रीका, और जो डिकोलोनाइजेशन की प्रोसेस हुई थी वो मेनली यहीं पर हुई थी, राइट। तो यूरोसेंट्रिक व्यू कहता है कि वर्ल्ड वॉर्स और ग्रेट डिप्रेशन की वजह से जो इकोनॉमिक बर्डन था इन कॉलोनियल पावर्स पर वो इतना ज्यादा था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रन दीस कॉलोनीज, सो दे हैड टू लीव दीस कॉलोनीज। नाउ देयर इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, एक्स सेंट्रिक व्यू। एक्स सेंट्रिक व्यू कहता है कि, कहीं पर भी आपको कॉलोनियां दी इस्टेब्लिश करनी है, तो जो वहाँ के कॉलोनाइज्ड पीपल जिन पर आप रूल कर रहे हो, उनका कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका कॉपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट बाय 1950s कॉलोनियल पावर्स जो थी, उनने इतनी ज़्यादा हार्श पॉलिसीज़ कर दी थी, इतनी ज़्यादा हार्श पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया था, टैक्सेशन और ड्रैकोनियन लॉज़ जिनके बारे में हम पढ़ते आए हैं और पढ़ेंगे भी। तो ये जो हार्श पॉलिसीज़ थी, इनकी वजह से लोगों के बीच में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया, ये जो कोऑपरेशन की फीलिंग है, ये खत्म हो गई, और इसकी वजह से फोर्सफुली दे हैड टू लीव इंडिया, और इसकी वजह से डीकोलोनाइजेशन हुई। खैर, कोई भी रीजन हो, कोई भी व्यू हो, बट इन दोनों ही व्यू की इंपॉर्टेंस है। दीज आर द मेन टू रीजंस व्हाई ब्रिटिशर्स हैड टू लीव इंडिया। सो ब्रिटिशर्स लीव्ड इंडिया आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। So when they were leaving India out of frustration, they did everything possible to destroy India. वैसे तो उन्होंने पिछले 200 सालों में इंडिया को डिस्ट्रॉय किया ही था, बट जाते जाते भी उनकी जो वो फैंटेसी थी या डिजायर था इंडिया को डिस्ट्रॉय करने का, वो अभी खत्म नहीं हुआ था। सो दे सो व्हाट दे डिड, दे अलाउड द प्रिंसली स्टेट्स। यदि हम एस्टिमेट्स की बात करें तो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जहाँ पर लोगों को, जहाँ पर वहाँ के किंग्स को सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी थी, दे वर नॉट कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। जो प्रिंसली स्टेट्स थे ऑन एन एस्टिमेट 564 से लेकर 584 के बीच में थे। ठीक है, इसमें से बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो मेजर प्रिंसली स्टेट्स थे, और बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो माइनर प्रिंसली स्टेट्स भी थे। तो इन प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने जाते जाते एक ऑप्शन दिए कि या तो आप यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थे, या तो आप यूनियन ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं अब, सिंस नाउ वी आर लिविंग दिस कंट्री और वी आर डिकोलोनाइजिंग। सो दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो this is India. So suppose these are some princely estates A, B, or C. Now this princely estates wishes to join with Pakistan, right? और यहाँ पर मान लीजिए एक बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। Now this princely estate decided to join Pakistan. Now think of this. इस पर्टिकुलर एरिया में पाकिस्तान गवर्नमेंट की डिसीजंस लागू होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होंगे, और मान लीजिए ये वाली जो कॉलोनी है, ये वाला सॉरी जो प्रिंसली स्टेट है, इट डिसाइड्स टू रिमेन इंडिपेंडेंट, इट डिसाइड्स टू रिमेन इंडिपेंडेंट अब, और ये शायद इंडिया में ही है। तो व्हाट विल हैपन कि इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन जगह चलेगा, इन जगह चलेगा, लेकिन इस जगह पर पाकिस्तान का भी पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे, साथ ही यहाँ के लोग यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, और यही कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी वेस्ट, और यदि हम बात करें ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान की, दिस वाज द मेन प्रॉब्लम, दीस पीपल्स वर ट्रैवलिंग फ्रॉम देयर टू देयर, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती। सो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा टास्क था कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो भी इंडियन टेरिटरी में आते हैं, जो पाकिस्तान टेरिटरी में चलेगा आफ्टर पार्टीशन, उनकी तो कोई दिक्कत नहीं, बट जो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में आते हैं, उनको इंडियन यूनियन में आने के लिए कन्विंस कैसे करना। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, राइट। सो what we had to do to deal with this situation, we needed we need we needed to integrate these princely estates with the union of India, with the union of India। और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ही प्लेड अ वेरी significant role in integrating those princely states। These see this number, मतलब यदि हम बात करें तो इंडिया उस टाइम पर लगभग 500 टुकड़ों में डिवाइडेड थी, ठीक है, और उन एरियाज को इंटीग्रेट करके एक अम्ब्रेला के अंडर मिलाना बहुत ही बड़ा टास्क था। तो सरदार वल्लभ भाई प्लेड दिस significant role through negotiations, through his excellent diplomacy, also using police actions in some of the places like Junagadh and Hyderabad. He took some police actions to convince them or to force them to join the Indian Union, क्योंकि यदि हम फोर्स नहीं करते तो आगे चलकर इंडिया के लिए ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो दिस वाज द सेकंड चैलेंज बिफोर
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हम इंटीग्रेशन कैसे करें, जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड चैलेंज। थर्ड चैलेंज क्या था? थर्ड चैलेंज वाज पार्टीशन। जैसा कि हमने जाना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई और बाय 15 ऑफ अगस्त 1947 हमारा पार्टीशन हुआ। लेकिन इससे भी पहले मार्च एंड अप्रैल से लेकर अगस्त 1947 तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि मुस्लिम लीग को ऑपरेट नहीं कर रही थी और हमें इस टाइम तक, मई या जून तक, जब माउंट बैटन प्लान आया, उसके पहले से भी हमें इस बात का अंदाजा था कि पार्टीशन जो है वो आज नहीं तो कल होगा ही होगा। सो इसकी वजह से बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रगल टू हैव अवर ओन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्टीशन का इशू था। और 1947 में जब ये पार्टीशन हुआ, तो इसके बाद जो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। नेगेटिव इफेक्ट्स पार्टीशन के क्या थे? नेगेटिव इफेक्ट्स वर दीज कि बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए थे। उस टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं था, राइट? आज से 50 70 to 80 ईयर्स बिफोर, ये पहले की बात है। तो इट इज एस्टिमेट से कि लगभग 10 मिलियन लोग, यानी कि लगभग 1 करोड़ लोग इधर से उधर डिस्प्लेस हुए थे। द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज अ horrendous or a terrible event. We got independence at a terrible cost. We have to keep remembering this thing. So it was a terrible event. इसमें से बहुत सारे लोग जो ये डिस्प्लेस हो रहे थे, इनमें से ये बहुत सारे लोग मर भी गए। 1 to 2 मिलियन डेड, ये सिर्फ एस्टिमेट्स कहते हैं। अनऑफिशियली तो इससे ज़्यादा लोग मर चुके थे। साथ ही वुमेन्स और चिल्ड्रंस, इनके साथ रेप्स हुए थे। दिस मेड दिस इवेंट मोर हॉरिबल। दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज सब्जेक्टेड टू रेप्स। बहुत सारी किलिंग्स हो रही थी। हम, यदि स्टोरीज आपने सुनी होंगी, तो देयर वर जो ट्रेन पाकिस्तान से इंडिया आती थी उसमें लाशें जाती थी, जो इंडिया से पाकिस्तान जाती थी उसमें भी कई बार लाशें जाती थी। इतना ज़्यादा टेरिबल इवेंट था ये। सो किलिंग्स होती थी। तो दिस वाज इस दौरान, इस पार्टीशन के ये जो हॉरेंडस इफेक्ट हो रहे थे, इसके दौरान कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना वाज वेरी हरक्यूलियन टास्क। इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क to frame constitution for a country which is going through these terrible events. चौथा चैलेंज क्या था? चौथा चैलेंज हमारे पास ये था कि की जो पॉपुलेशन है इंडिया की जो हमारी पॉपुलेशन है, वो पिछले 2 साल से गुलाम थी। दे हैड नो डेमोक्रेटिक राइट्स। सो द बिगेस्ट चैलेंज वाज नाउ टू इंश्योर डेमोक्रेसी। क्योंकि जब हम अपनी फ्रीडम मूवमेंट में थे, तो सभी लीडर्स लोगों से जब कंट्रीब्यूशन मांगते थे अपना टुवर्ड्स अचीविंग फ्रीडम, तो यही बोलते थे कि हम आपको डेमोक्रेसी देंगे, हम आपको बेटर राइट्स देंगे, हम आपको इस गुलामी से आज़ादी दिलाएंगे, हम आपको इस हार्श टैक्सेशन सिस्टम से आज़ादी दिलाएंगे, हम इक्वालिटी लाएंगे, हम लिबर्टी लाएंगे, हम फ्रीडम लाएंगे। तो इंश्योर कैसे करें? अब हमें उनकी डिमांड्स को पूरा करना पड़ेगा। यदि हम उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगे, जो जो हमने वादे किए थे वो हम पूरे नहीं करेंगे, तो आगे चलकर फिर से दिक्कत होगी। आगे चलकर कंट्री में इंस्टेबिलिटी होगी। तो हमें डेमोक्रेसी को इंश्योर करना था। और जब इतने सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में इतनी सारी डाइवर्सिटी हो, तो डेमोक्रेसी को इंश्योर करना बहुत ही कठिन काम होता है। सो वी गेव वी टुक सम इम्पोर्टेंट मेजर्स लाइक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि पहले नहीं थी। पहले यदि अपने आपने पिछला लेक्चर अटेंड किया होगा, तो वी डिस्कस्ड कि इंडिया में under British government they had limited franchise. Only those people who were paying taxes, only those people who were educated were allowed to vote for provisional provincial assembly elections. तो हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू की, जिसमें हमने बोला कि जो भी लोग हैं, 18 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा के जो लोग हैं, irrespective ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, जेंडर, दे कैन कास्ट वोट। पहले ये एज 21 थी, बाद में इस एज को घटाकर 18 कर दिया गया ऑन वेरियस ग्राउंड्स। तो देर दीज वर सम ऑफ द मेजर चैलेंजेस। यदि हम इन शॉर्ट बात करें, तो व्हाट वर सम मेजर चैलेंजेस? ये डेमोक्रेसी को इंश्योर करना, राइट? पार्टीशन की जो प्रॉब्लम थी, उसके दौरान इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, साथ ही जो बिखरा हुआ देश था उसको इंटीग्रेट करना, और उसके साथ ही यूनिटी प्रमोट करना एक ऐसी कंट्री में जिसमें बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है, राइट? नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर डिस्कशन, क्रिटिसिज्म। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत मेहनत से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बट स्टिल, अब वो दुनिया में कोई भी काम कीजिए, उसका क्रिटिसिज्म जरूर होगा। तो नाउ लेट अस आल्सो टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म। व्हाट इज क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट? सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बनाया? दे मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन।
अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिस प्रोसीजर को उन्होंने फॉलो किया, जिस स्टेट को उन्होंने एस्टैब्लिश किया, उसको क्रिटिसाइज किया बहुत सारे लोगों ने, जिनमें आते हैं हमारे लीगल एक्सपर्ट्स, क्योंकि इलिटरेट पर्सन्स जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज नहीं है, दे विल नॉट बी एबल टू क्रिटिसाइज इट। हम ये क्यों समझ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्रिटिसाइज किसने किया, ये हम अभी थोड़ी देर में समझ पाएंगे। फॉरेन नेशंस ने क्रिटिसाइज किया, साथ ही जो एजुकेटेड स्कॉलर्स थे, चाहे इंडियंस हो या बाहर के हों, दे ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड इट। तो सवाल ये है कि जब ये लोग जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो फॉरेन नेशंस हैं, जब स्कॉलर्स हैं, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो देयर क्रिटिसिज्म मस्ट बी रीजनेबल, राइट? रीजनेबल होगा, because they are legal experts, they have a good knowledge of this field, scholars have good knowledge, so this criticism is reasonable. But us as a citizen, or उससे भी आगे, as an aspirant of this prestigious civil service exam, you have to defend your country, right? You have to defend the policies. आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जॉब मांगने जा रहे हैं और आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी को ही डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू वर्क अंडर दैट इंस्टीट्यूशन, राइट? आज हम देखते हैं कि लोग बहुत ईज़िली तरीके से किसी भी पॉलिसी को गलत साबित कर देते हैं। बट वी डोंट थिंक कि उस पॉलिसी को जिसने बनाया है, उसके पास लगभग यू नो आपकी एज से भी ज़्यादा ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो उसे काफ़ी हद तक पता होता है कि क्या लीगल हर्डल्स आ सकते हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। उसके हिसाब से पॉलिसीज़ बनती हैं, उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नेहरू, they had good experience, they had a good understanding of Indian society. So they gave their 100% in making good provisions, But still, तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो क्रिटिसिज्म है वो भी रीजनेबल है। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन इस बॉडी ने बनाया है, उसको जिसने बनाया वो भी इंटेलेक्चुअल्स थे, तो उनके उन्होंने जो प्रोविजंस को यूज किया था, जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए थे, वो भी रीजनेबल थे। द ओनली थिंग इज वी हैव टू डिफेंड इट। व्हाई? सो किस तरीके के क्रिटिसिज्म थे वो भी हम जानेंगे। बट नाउ लेट अस लुक एट द बैकग्राउंड। इंडिया वाज अ न्यू कंट्री एंड अ वेरी वास्ट कंट्री, जिसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। इसकी वजह से क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा था। कैबिनेट मिशन प्लान की यदि हम बात करें, जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया, इन्होंने ये कहा था कि इंडियंस विल नॉट बी एबल टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, दे विल नॉट बी एबल टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? साथ ही उन्होंने कहा यदि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना भी लिया तो इट विल नॉट लास्ट फॉर मोर देन 10 years, राइट? बट इंडिया इज अ अमेजिंग कंट्री। यदि हम बात करें, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि जब इंडिया ने अपना पहली बार खुद का रॉकेट बनाया, मिसाइल बनाई, तो हम यू नो साइकिल्स का और बुल्लॉक कार्ट्स का यूज करते थे टू कैरी इक्विपमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। वहीं बात यदि हम करें यूनाइटेड किंगडम की, जिस कंट्री ने, जिस पावर ने हम पर 200 साल रूल किया, जिस कंट्री ने 200 से पूरे वर्ल्ड में हंड्रेड्स ऑफ कॉलोनीज को मैनेज किया, दे डोंट हैव देयर ओन लॉन्च पैड इवन टुडे। सो गाइस, यदि हम यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे, तो दे डोंट हैव एनी लॉन्च पैड जहां से वो किसी रॉकेट को लॉन्च कर सकें। वो अपने रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए दूसरी कंट्रीज से उनके लॉन्च पैड उनके लॉन्च पैड से अपने रॉकेट को लॉन्च करने की परमिशन देते हैं। यदि हम आज की बात करें, तो दे हैव टू लॉन्च पैड जो कि अभी भी फंक्शन में नहीं आए हैं। एक है सेक्स-फोर्ड स्पेस पोर्ट, राइट, जिसको 2023 में लाइसेंस मिला, बट अभी तक उसमें कोई भी रॉकेट लॉन्च नहीं हुआ है। दूसरा है सदरलैंड सदरलैंड स्पेस पोर्ट, जो कि बनना स्टार्ट हुआ था मई 2023। इस सब के बावजूद, ये इतनी पावरफुल कंट्री होने के बावजूद भी, इनके पास आज तक अपना खुद का लॉन्च पैड नहीं है। वहीं यदि हम इंडिया की बात करें, जिसने अपने पहले रॉकेट को बनाने के टाइम पर उसके इक्विपमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए साइकिल और बुल्लॉक कार्ट्स यूज किए थे, आज उसके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतनी अच्छी मिसाइल्स हैं, लाइक पीएसएलवी, जिसके बारे में हम जब साइंस एंड टेक का पोर्शन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा यू नो बेटर है उस कंट्री से जिसने हम पर रूल किया। वहीं यदि हम यूके की दूसरे फीचर की बात करें, तो टिल डेट दे डोंट हैव एनी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यू नो दे हैव रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ पीपल। हम यदि जापान की बात करें, 1945 के बाद से लेकर अब तक, दे हैव रीरिटन देयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑलमोस्ट 12 टाइम्स। ये 12 बार अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके। उसी की जगह यदि हम इंडिया की बात करें, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को जिस बॉडी ने बनाया था, उसे जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, नाउ
they can see that it has been working for over 70 plus years. Why? Because it is a living document, है ना? It has the इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ऐसे प्रोविजंस दिए हैं which allow to modify this document as per the changing needs demands of the society. So as an aspirant we have to defend the constituent assembly which made the constitution for us. Why? Because is it good to criticize those freedom fighters? Is it good to you know criticize those who worked hard to give us independence, to give us our own constitution? I think it is ethically a wrong idea. So guys, now let us discuss what are the criticisms of Constituent Assembly. Of Constituent Assembly. So guys, the जो कि पहला क्रिटिसिज्म है वो ये है कि दिस बॉडी वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, और जैसे हम आईएनसी बोल सकते हैं. However, it must be noted that Congress as a party was so heterogeneous that it had members from all the sections of the society. ये क्रिटिसिज्म है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें पार्टीशन के बाद 296 मेंबर्स बचे थे, इसमें से 208 जो मेंबर्स थे वो कांग्रेस के थे, और बाकी के जो मेंबर्स थे वो मुस्लिम लीग से थे, और कुछ अदर पार्टीज जो थी उनसे थे, राइट. 73 मुस्लिम लीग से थे और बाकी के बच्चे कुछ 10 to 15 अदर पार्टीज से थे. सो इट वाज कांग्रेस डाउन. तो ये जो क्रिटिसिज्म है इट इज ट्रू, okay, but we have to defend it. How we can defend it? So the answer is, first of all, it was the largest political party of the time. अदर पार्टीज जो थी जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन, ये सारी की सारी कभी ना कभी कांग्रेस की ब्रांच ही तो थी, राइट. तो यदि हम बात करें अदर पार्टीज की तो वो कभी ना कभी इंडिया की ब्रांच ही थी, एंड इट वाज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी. और सभी के सभी जो भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज थी जैसे कि नेहरू, यू नो सरदार वल्लभ भाई पटेल, दे ऑल बिलोंग टू आईएनसी. क्यों? ये जो लीडर्स थे ये एक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी थे, इनके पास इमेंस पब्लिक सपोर्ट था, दे वर एबल टू कन्विंस पीपल. सो saying this, that it was congress dominated and that's why constituent assembly was not a representative body would be considered wrong. Why? Because congress was called an umbrella party then. Why? Because it had members from all the sections of the society. It had members from फॉलोइंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज. इसकी खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, इस पार्टी के अंदर सभी तरह के लोग थे, सभी दल के लोग थे. दैट्स व्हाई इट वो द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस. सो हम कह सकते हैं कि दो इट सीम्स दैट कांग्रेस डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली न्यूमेरिकली, बट सीरियस अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक इट इंक्लूसिव ऑफ ऑल आइडियोलॉजीज. ऑल लॉज वर मेड विद कंसेंसस. यदि हम बात करें कि क्या कांग्रेस की ये जो स्ट्रेंथ थी इसकी वजह से हमारे जो लॉज थे दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय कांग्रेस, वर द लॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय आईएनसी. हो सकता है बहुत से लोगों को लगे द आंसर इज यस, बट द आंसर इज नो. व्हाई? क्योंकि हर लॉ को बनाने के लिए हमने जो मेथड को यूज किया था, किसी भी लॉ को फाइनल जजमेंट देने के लिए, फाइनल वैलिडेशन देने के लिए हमने कंसेंसस का यूज किया था. कंसेंसस का मतलब होता है 100% वोट्स. यू नो कि उस टाइम पर जब भी कोई लॉ बना रहे थे उस टाइम पर उस पार्लियामेंट में या उस बॉडी में जितने भी लोग थे उन सब ने ऐसे यस कहा, उन सब ने ऐसे सपोर्ट किए. ठीक है. जब हमने अपने लॉज बनाए थे तो वी डिडंट यूज सिंपल मेजोरिटी. सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, किसी भी लॉ को पास करने के लिए 50% प्लस 1 वोट चाहिए होते हैं. यदि हम स्पेशल मेजोरिटी से पास करें तो हमें 2/3 ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी चाहिए होती है. बट इन मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी फॉलोड द मेथड ऑफ कंसेंसस. उस दिन उस बॉडी में प्रेजेंट जो भी लोग जब तक एग्री नहीं कर जाते थे कि ये लॉ बनना चाहिए तब तक वो लॉ पास नहीं होता था. एंड दे मस्ट गिव सम लॉजिकल रीजन इफ दे डू नॉट एग्री विद एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ. तो जब तक लॉजिकली ये प्रूफ नहीं हो जाता था कि द लॉ हैज बीन सपोर्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द असेंबली और ऑल द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट इन द असेंबली ऑन दैट डे, तब तक वो लॉ नहीं बनता था. सो ऐसा कहना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लॉज बन रहे थे वो कांग्रेस से इन्फ्लुएंस थे, ये गलत होगा. क्योंकि जब तक ये जो अदर मेंबर्स हैं इनके वोट्स नहीं मिल जाएंगे तब तक लॉ बनेगा ही नहीं. So calling it that it was dominated by Congress, the answer is yes.
But how will you defend it? You will defend it by saying that it was the largest political party of the time. It was an umbrella party. It had members from all the sections of the society, from all the religions, from all the, you know, caste. It had charismatic personality who enjoyed immense public credibility and support. And by and large, Constituent Assembly would have remained the same if there were other parties as well. उसके साथ ही उस टाइम पर जो ऑब्जेक्टिव था उसके साथ ही जो ऑब्जेक्टिव था उस टाइम पर कांग्रेस का, इट वाज नॉट पावर कैप्चरिंग, इट वाज अबाउट नेशन बिल्डिंग। सबके अंदर जो एक मेन एजेंडा था वो नेशन बिल्डिंग का था। दैट्स व्हाई सेइंग दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, द आंसर इज यस, बट इट वाज, यू नो, देयर वाज it was not influenced by Congress. Therefore, we can say that it was democratic. Democratically, Constituent Assembly was working. Now, what is the second criticism of Constituent Assembly? The second criticism of Constituent Assembly is Hindu dominated. Is Hindu dominated. विंस्टन चर्चिल विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जो, उन्होंने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज बीन डोमिनेटेड बाय ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्ड में कहा था कि इट इज, यू नो, ओनली वन मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑफ इंडिया represents the constituent assembly. The answer to this, criticism is yes. Yes, it was Hindu dominated, but हमें उसके लिए हमारे पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिक्स को भी समझना पड़ेगा। उस टाइम पर इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, इट वाज रफली अराउंड 389 to 400 मिलियन, एज वी हैव डिस्कस्ड, एज पर द एस्टिमेट्स ऑफ 1941 सेंसस। तो जो हिंदूज थे, देयर पॉपुलेशन वाज ऑलमोस्ट 80%। सेकेंडली, जो अदर्स हैं, मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियन या और भी जो भी रिलीजन के लोग थे, दे ऑल अकाउंटेड फॉर 20% ऑफ द पॉपुलेशन। एंड मुस्लिम्स यदि हम बात करें तो 10 से 12% की मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी। सो यस, इट वाज डोमिनेटेड बाय हिंदूज, बट पॉपुलेशन भी हिंदूज की ज्यादा थी। दैट्स व्हाई रिप्रेजेंटेशन वाज हायर, बिकॉज कैबिनेट मिशन प्लान हैड सेड दैट वन पर्सन इन द असेंबली विल रिप्रेजेंट 10 लाख पीपल्स। ये रेशियो हमने फॉलो किया था to arrive at the conclusion that there will be 389 members. But after, दोस्तों, the answer to this criticism is yes, but serious attempts were made to ensure that there are members from all the religions. और इसी के चलते यदि हम बात करें तो हिंदूज के जो द नंबर ऑफ हिंदूज थे इस असेंबली में वो 163 था। यदि हम बात करें मुस्लिम्स की तो रफली देयर वर 80। यदि हम बात करें स्केड्यूल्ड कास्ट के लोगों की तो देयर वर 31 पीपल्स, यू नो। और बैकवर्ड ट्राइब्स की बात करें तो 6 लोग थे। इंडियन क्रिश्चियंस की बात करें तो वहाँ भी 6 लोग थे। उसी तरह सिख, एंग्लोज, इन सब कम्युनिटीज से भी 3-3, 4-4 मेंबर्स थे। तो serious attempts were made to make this body more representative, more diverse. So yes, it was dominated by Hindus because the population was dominated by Hindus, but at the same time, all kinds of attempts were made to ensure that the assembly has members of all the religions, members of all the caste, and even women also. तो दोस्तों, तीसरा क्रिटिसिज्म जो है वो ये है कि दिस बॉडी वाज नॉन रिप्रेजेंटेटिव। नॉन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का मतलब क्या है? जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में जाना था कि जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, दे वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और डायरेक्टली। These members of the Constituent Assembly were elected by the members of provincial legislative assemblies, which had been established under the Government of India Act around 1937 on the basis of limited franchise, जिसमें कि सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट करने की पावर थी जो कि या तो टैक्स पे करते हैं, जो कि या तो एजुकेटेड हैं, या फिर जो प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो यस, द आंसर टू दिस क्रिटिसिज्म इज अगेन यस। Yes, the Constituent Assembly was dominated, or sorry, yes, the Constituent Assembly, the members of the Constituent Assembly, were elected indirectly, and yes, it was not a it was not a completely representative body. But the thing is, even if direct elections had been conducted, the results would not have been very different because the members of the Constituent Assembly were very popular and enjoyed mass support. तो जैसे कि यदि हम बात करें कि इस बॉडी में जो मेंबर्स थे, जैसे कि नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, ये पर्सनैलिटीज इतनी कैरिस्मेटिक थी कि यदि ये डायरेक्ट इलेक्शंस भी फेस करते तो भी ये जीतते। और बात सिर्फ इन्हीं मेंबर्स की नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कि ज्यादातर मेंबर्स जो थे, दे एंजॉयड इमेंस पब्लिक सपोर्ट, दे वर एबल टू कन्विंस पीपल। तो यदि डायरेक्ट इलेक्शंस भी होते
तब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कंपोजिशन है वो लगभग लगभग इसी तरह होती। तो दूसरा तरीका जो है इसे डिफेंड करने का वो ये है कि पहला तरीका तो यही है कि कॉम्पोजिशन वुड हैव बीन ऑलमोस्ट सेम, वुड हैव बीन ऑलमोस्ट सेम। दूसरा तरीका जो हो सकता है डिफेंड करने का वो ये, आप यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल दे सकते हैं। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को लगभग 13 लोगों ने बनाया था, 13 मेंबर्स मेड द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 300 years नाउ। ठीक है, स्टिल इट इज अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज मेड इन फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। So it is not necessary that if the body is directly elected only then the constitution will be successful. So yes, the constitution assembly was non-representative, but serious attempts were made to include members of all the sections of the society. And also, if it had been elected on direct basis under universal adult franchise, the composition would have remained almost same. एक और क्रिटिसिज्म जो इसी के रिलेशन में होता है वो ये होता है कि इट वाज अ नॉन सॉवरेन बॉडी। ठीक है, वो क्या है? तो क्रिटिक्स आर्ग्यू कि जो मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का प्रोसीजर था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का जो प्रोसीजर था, इट वाज गिवन बाय द ब्रिटिश, or more appropriately we can say the cabinet mission plan. So there is a criticism कि it is a non sovereign body, ये हम इस बॉडी को हमने खुद नहीं बनाया। तो दोस्तों, यदि हम बात करें उस टाइम की, तो उस टाइम सिचुएशन ये थी कि वी वांटेड इंडिपेंडेंस एट एनी कॉस्ट। यदि हम बात करें, हम खुद का एग्जांपल ले लें कि यू हैव cleared or you have passed a 10th exam, now you need a mobile phone and you demand from your parents that you want an iPhone, but your parents say that no, iPhone is not possible. If you want any other phone below the price of 30,000 rupees, you can have it. What will you do? In the maximum situations, you will choose to have something rather than everything. This is what the members, the freedom fighters, or the pupils who were playing a major role in India's independence, like Nehru, Patel, Ambedkar, Gandhi, they decided to accept something, you know rather than demanding everything. तो उस टाइम पर एक सॉवरेन बॉडी बनाना, राइट, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसलिए हमें जो भी मिला हमने उसे एक्सेप्ट किया और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दूसरा, और इसी तरह के बहुत सारे छोटे छोटे क्रिटिसिज्म हैं जिन्हें डिफेंड करना बहुत ईजी है। एक और क्रिटिसिज्म है, इट वाज डोमिनेटेड बाय लॉयर एंड पॉलिटिशियंस। So yes, it is maintained by critics at the Constituent Assembly, as they pointed out that it was dominated by lawyers and politicians. So एक और criticism जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में वो ये है कि it was dominated by lawyers and politicians. तो critics argue कि other sections of society जैसे कि engineers, या फिर डॉक्टर्स, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन सभी को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आप ही बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इंजीनियर क्या कंट्रीब्यूशन करेगा? डज ही नो अबाउट द सोसाइटी एज मच एज पॉलिटिशियंस नो? डज इंजीनियर नो व्हाट कुड बी द लीगल हर्डल्स ऑफ सम काइंड ऑफ पॉलिसी? रिजर्वेशन देने का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसका कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है? क्या इन्हें ये पता है कि सोसाइटी की डिमांड्स क्या है? ओनली अ पॉलिटिशियन नोज कि what are the aspirations of the society. So constitution requires, it is a requirement of the constitution that it is made by legal experts, या फिर जिन्हें आप लॉयर्स बोल सकते हैं, या जजेस बोल सकते हैं, हु हैव आइडिया कि किस तरीके के हर्डल्स आ सकते हैं किसी भी पॉलिसी को बनाने के लिए। दूसरी रिक्वायरमेंट वो कॉन्स्टिट्यूशन की ये है कि इट मस्ट सेटिस्फाई द नीड्स और डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी, यू नो एंड सो इट रिक्वायर्स द रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंटेटिव्स of pupils, right, who can express their needs, who can express their aspirations, who can express their demands. इसलिए इस इन ग्राउंड्स पर आप इसे प्रूव कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस played a dominant role because they are the ones who are required to make a good constitution, right? दूसरा, एंड देयर इज अनदर क्रिटिसिज्म, वो है टाइम टेकिंग का। जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि व्हाई इट टुक सो मच टाइम, इट सीरियस इश्यूज वर देयर लाइक पार्टीशन था। हमने जो मेथड यूज किया किसी भी लॉ को बनाने के लिए, उसमें हमने बहुत सारा डिबेट किया, बहुत सारे डिस्कशन किए। हमने मोड ऑफ कंसेंसस यूज किया कि जब तक 100% लोग जो कि प्रेजेंट है मीटिंग में वो उस लॉ को वैलिडेट ना करें तब तक हम उस लॉ को नहीं बनाते थे, राइट?
आफ्टर पार्टीशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज परफॉर्मिंग टू टास्क। पहला, लॉ एंड ऑर्डर एंड रेवेन्यू मेंटेन कर रही थी क्योंकि ब्रिटिशर्स जा चुके थे 1947 में। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम भी कर रही थी। जब जब ये बॉडी इन काम के लिए मिलती थी, लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, तब इसको हेड करते थे जीवी मावलंकर साहब। और जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए ये बॉडी मिलती थी, तब इसको हेड करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राइट। तो फ्रेमर्स, लोग आर्ग्यू करते हैं कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, दे टुक लेस देन 4 मंथ्स। राइट, क्रिटिसिजम्स होते थे। बट जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें 7500 प्लस अमेंडमेंट्स यू नो प्रपोज किए थे, जिसमें से लगभग 2300 अमेंडमेंट्स को हमने इम्प्लीमेंट भी किया। साथ ही 60 से भी ज्यादा, दुनिया में उस टाइम का शायद ही कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि रेफर नहीं किया गया था। 60 प्लस कॉन्स्टिट्यूशंस वर रेफर्ड बिफोर मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So these were some of the reasons why it took long time for the Constituent Assembly to, made the Constitution of India. So till now we discussed some of the challenges before the Constituent Assembly. We also discussed criticisms of the Constituent Assembly, and also we learned how to defend those criticisms on logical grounds, because as an aspirant, it is necessary for us to defend. So friends, now let us move towards understanding what are the criticism of our constitution itself. Till now we understood the criticism of the Constituent Assembly which framed our constitution. Now let us discuss some of the criticisms which are imposed on our constitution. So for that, first of all, we have to understand what is the content of this constitution. क्योंकि अभी तक हमने हमारे constitution को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, हमने इसके मेन आर्टिकल्स को नहीं पढ़ा है, schedules को नहीं पढ़ा है। So वी नीड टू नो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, या फिर उनके सोर्सेस क्या है। क्योंकि ऑन द मेन ग्राउंड ऑन विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्रिटिसाइज इज the sources. As we have said here, that we refer to almost 60 plus constitutions to make the best constitution, to learn from their mistakes, and to get good things from their constitutions. So we refer to 60 plus constitutions, so we have taken principles from different constitutions. So there is a criticism of, that we copied our constitution from different sources. So let us first of all discuss, take a look at those sources. Yeah. So guys, these are some of the main sources of the Indian Constitution, जहाँ से हमने अपने Constitution के main content को लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि ब्रिटिश लाई थी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था, वो पुराने सभी रूल्स एंड रेगुलेशन और पुराने सभी एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में लाई थी, उनसे कई गुना बेहतर था। और ये इसलिए बेहतर था क्योंकि ब्रिटिश को कहीं ना कहीं अंदाजा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, और उस वॉर के दौरान उन्हें हमारे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वो जिन पर उन्होंने, जिनके ऊपर उन्होंने अपना रूल सेटअप कर रखा है, जिनकी आज़ादी उन लोगों ने छीन रखी है, उनको हमें सम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी, तभी वो हमारा सपोर्ट करेंगे मिलिटरली एंड पॉलिटिकली एज वेल। तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें थी, जिनसे हमने काफ़ी सारी प्रिंसिपल्स लिए, जैसे कि फेडरल स्कीम। यू नो वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट्स विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बारे में भी हम जैसे जैसे पढ़ेंगे, सभी प्रिंसिपल्स को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑफिस ऑफ गवर्नर कैसे काम करेगा, राइट, जुडिशियरी का स्ट्रक्चर क्या होगा, पब्लिक सर्विसेज कमीशन, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से इंस्पायर होकर रखी है। इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, वहीं हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की यदि बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी हैव, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट एट द टॉप, रूल ऑफ लॉ, legislative procedure, how to, the bill is converted into an act, वही एक legislative procedure है। सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट, जिसे हमने पहले इसी लेक्चर में डिस्कस किया था, जैसे कि यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, and citizen of USA has a citizenship of USA, and at the same time he also has a citizenship of the state to which he or she belongs. But in India you have only one citizenship. You are the citizen of India, that's it. You may be domicile of Madhya Pradesh, UP, Uttarakhand, or any state or any new state which may be created in the future, but as far as your citizenship is considered, you will be citizen of India only. Cabinet system, prerogative rights, parliamentary privileges and bicameralism। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जिसे माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसे माना जाता है, फंडामेंटल राइट्स, ही हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। हमने जुडिशियरी को
लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव विंग से एकदम सेपरेट करके रखा है। ये भी हमने यूएस से ली है। जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट की उस पावर की कि वो लेजिस्लेटिव द्वारा बनाए हुए लॉ को रिव्यू कर सके कि कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें वायलेट तो नहीं कर रहे। इस प्रिंसिपल को भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साथ ही प्रेसिडेंट के रिमूवल की प्रोसेस क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने की प्रोसेस क्या होगी, ये भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ली है, जो कि हमारे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। सिमिलरली नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इन मेथड्स को लिया है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स बाय द सेंटर एंड द एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की यदि हम बात करें तो हमने कॉन्करेंट लिस्ट, यदि आपको पता है कि यू नो वी हैव 3 लिस्ट जिनमें वो आइटम्स हैं जिन पर कौन लॉ बना सकता है ये बताया गया है। जो कि सेंट्रल लिस्ट है उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, जो कि स्टेट लिस्ट है उस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर दोनों ही गवर्नमेंट लॉज बना सकती हैं। हालांकि यदि कभी कंफ्लिक्ट हो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यदि उन्होंने एक ही सब्जेक्ट पर लॉ बना दिए, तो उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए लॉज प्रिवेल करेंगे। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये सारे फीचर्स भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए है। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अब जो जिसे पहले यूएसएसआर बोलते थे टिल 1991, और अब जिसे हम रशिया बोलते हैं, वहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट लिया। द आइडियल ऑफ जस्टिस हमारे जो प्रियम्बल में मेंशन्ड है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब जहाँ का हेड ऑफ स्टेट जो है इलेक्टेड होता है, हायरार्चिकल नहीं होता है, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। वैसे ही साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, इन सभी इतनी सारी चीजें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ली है दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से। इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है ऑन वेरियस ग्राउंड्स। नाउ लेट अस डिस्कस दोज ग्राउंड्स एज वेल। तो जो पहला क्रिटिसिज्म है वो ये है कि बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इट इज द रिजल्ट ऑफ स्लैविश इमिटेशन, इट इज द रिजल्ट ऑफ स्लैविश इमिटेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। स्लेविश इमिटेशन का मतलब क्या है कि हमने अपनी स्लेवरी को प्रूव किया है, हमने ब्रिटिश के द्वारा बनाए हुए प्रिंसिपल्स को कॉपी करके बताया है कि वी वर देयर स्लेव्स, रेदर देन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें अपने खुद के प्रिंसिपल्स को इवॉल्व करना चाहिए। इसी को लेकर के हनुमंथैया के मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। सच फैक्ट्स कैन बी आस्क्ड इन prelims or even you can use them in means examination to improve the quality of your answers. So there was K Hanumanthaya, K Hanumanthaya, who was member of the Constituent Assembly. He said that we wanted the music of Veena or sitar, but here we have the music of English band. हम अपना खुद का कुछ इवॉल्व करना चाहते थे, बट यदि हम देखें तो हमने बिल्कुल ही जिनसे हमने आज़ादी ली उन्हीं को हमने कॉपी कर लिया है। वैसे ही इस तरह के बहुत सारे टर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने दिए थे, जैसे कि यदि हम नसीरुद्दीन अहमद है शायद, यस, नसीरुद्दीन अहमद, इन्होंने ड्राफ्टिंग कमिटी के लिए एक टर्म दिया था, जिसे हमने कहा था कि इट इज नॉट अ ड्राफ्टिंग कमिटी बट इट इज एक्चुअली ड्रिफ्टिंग कमिटी बिकॉज ऑफ द टाइम इट टुक टू make the Indian constitution. So these were some of the main criticisms of कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कभी कभी ये भी कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग। हमने हर कहीं से कहीं ना कहीं से सब कुछ सिर्फ बोरो किया है, खुद का कुछ इवॉल्व नहीं किया है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज समटाइम्स referred as you know bag of borrowing because of these reasons. We have took so many things from other constitution rather than evolving our own structures और own procedures। इन सबको डिफेंड करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये कहा था कि एट दिस आवर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, पार्टीशन का इतना ज़्यादा क्राइसिस हो रहा है, लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमी गिरी हुई है, एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अनरेस्ट है, उस टाइम पर ये बहुत मुश्किल है कि हम खुद के स्ट्रक्चर इवॉल्व करें, जैसा कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हुआ था। एंड दैट्स व्हाई ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक ऑलमोस्ट 9 years टू कंप्लीट। यदि हम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 1945 के बाद से लेकर अब तक वो 12 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिख चुके हैं। जिस कंट्री ने, जिस कॉलोनियल पावर ने हम पर रूल किया, यूके, आज तक उनका खुद का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में खुद का स्ट्रक्चर, खुद के प्रोसीजर्स और खुद के प्रिंसिपल्स इवॉल्व करना विल बी अ वेरी लॉन्ग process and it is not possible at this hour of time. Still we can address, so we can address this criticism on various grounds, right? जैसे कि ये कहना काफी गलत होगा कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेरली अ स्लैविश इमिटेशन, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हर प्रोविजन को पर इंटेंस डिबेट और डिस्कशन हुई थी। हमने जो भी चीजें बोरो की थी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से, उन पर बहुत सारा डिबेट एंड डिस्कशन हुआ था। साथ ही मीडिया के थ्रू लोगों को भी बताया गया था कि हम इस तरीके के स्ट्रक्चर्स, इस तरीके के प्रोसीजर्स, इस तरीके के प्रिंसिपल्स इवॉल्व कर रहे हैं। हमने लोगों की नीड्स और डिजायर्स को समझा था। उसके बाद इमेंस डिबेट एंड डिस्कशन के बाद जो जो चीजें हमें गलत लगी उनको हमने हटाया, और जो जो चीजें हमें सही लगी उनको हमने रखा। वी ऑल्सो फॉलोड द मेथड ऑफ कंसेंसस, 100% वोटिंग। जब तक कि असेंबली में प्रेजेंट 100% लोग एग्री ना कर जाएं कि ये लॉ और इसके सारे के सारे सेक्शंस, इसके सारे के सारे प्रोविजंस हमारी कंट्री के लिए फेवरेबल हैं, हमारी कंट्री के लोगों की नीड्स और डिमांड्स को एड्रेस करते हैं, तब तक वो लॉ नहीं बनता था। साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की विजन को यदि हम देखें तो दे गिव अस फ्लेक्सिबल वे ऑफ अमेंडमेंट हमारा, उन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करने का ऑप्शन दिया, बट वो इतना एब्सोल्यूट भी नहीं है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, हम फंडामेंटल राइट्स को इजीली चेंज कर दें, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कन्वर्ट करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर दें। इट इज very difficult in India, but at the same time it also allows us to modify the constitution as per the changing needs of society, problems and aspirations of Indian society. साथ में हमने टाइम टू टाइम इनोवेशंस भी किए, टाइम टू टाइम इनोवेशन। जैसे कि यदि हम बात करें तो जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सोशल रिफॉर्म्स कैसे करें, क्योंकि यदि हम सोशल रिफॉर्म करेंगे तो इक्वालिटी हार्म होगी। यदि हम किसी को कुछ एक्स्ट्रा देंगे, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, तो किसी ना किसी को नहीं भी देंगे, बिकॉज इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम सभी को तो वो बेनिफिट्स दे नहीं सकते, और हम इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर चलना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने 9th शेड्यूल बनाया, जिसके अंडर हमने रिजर्वेशन पॉलिसीज को, लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज को प्रोटेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी के प्रिंसिपल से, ताकि जो डाउन ट्रॉडन सेक्शंस है, जो वल्नरेबल सेक्शंस है इंडियन सोसाइटी के, उनको अपलिफ्ट किया जा सके। ठीक है। इसी के साथ बहुत सारे दूसरे रिफॉर्म्स जुडिशरी ने भी किए। यदि हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी ने बहुत सारे यू नो evolving time to time as per the needs of Indian society, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बट सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो evolved द प्रोसीजर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जहाँ कोई भी डायरेक्टली पीआईएल फाइल करके उन लोगों के लिए जो कि कोई एक्टिविस्ट है, और उन लोगों के लिए जिनके साथ कोई ना कोई अन्याय हो रहा है, उनकी प्रॉब्लम को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सकता है डायरेक्टली। और भी ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स और प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू जो कि था, बट इसको और बेहतर किया सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू वेरियस जजमेंट्स इन केशवानंद भारती केस एंड इन अदर केसेस। बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व की, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, doctrine of constitutional morality, doctrine of essential features of religion। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली कार्बन कॉपी तो नहीं है दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बहुत सारे लोगों से इंस्पिरेशन ली है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन ली है, स्ट्रक्चर से इंस्पिरेशन ली है, बट हमने कंप्लीटली इसे कॉपी नहीं किया है। तो इसे ऐसा बोल देना कि इट इज अ बैग ऑफ बोरोइंग, और इट इज अ कार्बन कॉपी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in 1935, or it is a result of slavish imitation, will be wrong. You can use these grounds to defend that yes, it is not completely a bag of borrowing. These principles are our own. We have evolved our constitution over the period of time, and our constitution has been successfully working for over 70 years now, as compared to most of the countries whose constitutions do not work for a long time.
वर्ल्ड में बहुत सारे कम कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे हैं जो कि सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, जैसे कि यूएसए का। और इन्हीं सभी सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी यू नो वी मेड अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। सो आज के लेक्चर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। वी डिस्कस्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वी डिस्कस्ड अबाउट द criticism that it faced, we discussed the challenges of the constituent assembly while preparing the constitution of India, we also discussed some of the main sources of Indian constitution। दोस्तों आप इन सोर्सेस को भी बहुत अच्छे से याद रखें क्योंकि प्रीलिम्स में इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। साथ ही क्रिटिसिज्म क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, और सबसे ज़रूरी एज एन एस्पिरेंट जो कि आपके लिए ज़रूरी, वो डिफेंड करना हमारी यू नो लीडर्स को, हमारे स्ट्रक्चर्स को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, वो भी हमने सीखा हाउ टू डिफेंड अवर इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट ऑन लीगल ग्राउंड्स। हमने जाना कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो क्रिटिसिज्म है हम उसे डिफेंड कर सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो जिस ग्राउंड्स पर क्रिटिसाइज किया जाता है उन्हें हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम आगे के पोर्शन को कवर अप करेंगे।